الطاف محمد کے پاس سے، لیکن میں الطاف محمد صاحب سے دوبارہ جم کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ کر دوں ہمارے ویورز کے لیے کہ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو ہم نے راشن بیگ کی جو مد میں پیسے لکھے ہیں وہ ہیں 6,000 روپے. آپ ایک راشن بیگ کے پیسے بھی ہمیں دے سکتے ہیں تاکہ وہ ہم اس کو کام میں لا سکیں. ٹینٹ جو ہے، جس کی ٹینٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا کہ ٹینٹ شارٹ ہو گئے تھے، لیکن فارچونیٹلی ماشاءاللہ سے ہمارے پاس وینڈرز ہیں جو کہ 9,000 روپے کا ہمیں ایک ٹینٹ دے رہے ہیں. تو آپ ٹینٹ کے لیے بھی ہمارے یہاں کانٹ کر کے یا WMO آفس پہ کانٹیکٹ کر کے ڈونیشن کر سکتے ہیں. پکا ہوا کھانے کے لیے ہم نے ایک فیملی کے لیے پر ڈے 600 روپے کی رقم جو ہے وہ فائنل کی ہے کہ آپ 600 روپے تک اگر پکا ہوا کھانے میں اگر آپ دینا چاہیں WMO کو تو 600 روپے تک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوائیاں، لیکن بھائی جو بھی آپ بات کر رہے تھے کہ حیدرآباد سے رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، دوائیوں کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ جتنی زیادہ چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ کیش دینا چاہیں، ہم نے ایک لمسم اماؤنٹ جو ہے وہ 1 ملین PKR کی رکھی ہے جو کہ 10 لاکھ روپے ہیں. لیکن آپ اس سے کم دوائیاں دینا چاہیں یا پیسے دینا چاہیں آپ WMO آفس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں ریسٹوریشن آف ہوم، گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے 1 ملین سے 1.5 ملین تک کا ایک رقم مختص کی کہ ایک اچھے گھر اس میں بن جائیں گے ان علاقوں میں. اچھا، یہاں سے ہم جم کر کے جاتے ہیں. ایک اناؤنسمنٹ کی اجازت دیجیے گا. اب تک جو الحمدللہ رقم ہم اکٹھی کر پائے ہیں وہ تقریباً 5 کروڑ سے اوپر ہے الحمدللہ. 5 کروڑ سے اوپر کی رقم ایک گھنٹے کی ٹیلی تھون میں اب تک ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم پر ہم نے اکٹھی کی ہے. جی بالکل، میں نے کہا اس طرح آغاز ہے. میں اس طرف جانے سے پہلے آغاز ہے. محمود شیخانی صاحب موجود ہے، میں آئی تھنک اس وقت UK میں غالباً. جی السلام علیکم محمود بھائی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں اقرار بھائی؟ اللہ کا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. فائنلی آپ کی کال آ گئی. ہم ویٹ کر رہے تھے کہ شیخانی صاحب کی کال آئی نہیں ہے ابھی تک. نہیں، بس میں بالکل لائن پہ ہی ہوں. دیکھ رہا ہوں آپ لوگ جس طرح محنت کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں سلمان اقبال بھائی کا، ARY TV کا، ARY فیملی کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ARY فیملی یہ انیشیٹو لیتی ہے اور ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم آ کے جو ابھی تکلیف کا وقت چل رہا ہے اس میں اپنے فیملیز کی، بھائیوں کی، جو لوگ اس پریشانی میں ہیں ان کی مدد کر سکیں. بالکل. جی محمود. سب سے امپورٹنٹ اقرار بھائی اور جواد بھائی، سب سے امپورٹنٹ جو ہم بات کر رہے ہیں کنٹینیوسلی ریہیبلیٹیشن کی، یہ ایک ایسا پروسیس ہے، اٹس اے ویری لانگ ٹرم پروسیس، اور اس کی پوری جو ورکنگ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے پورا پلان بنانا پڑتا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے WMO بھی بنایا ہوا ہے، پاکستانی اداروں کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے لیے کہ کس طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. جیسے کہ پہلے بھی 2010، 11 اور 2005 میں شاید جو زلزلے اور سیلاب آیا تھا اس میں ہم نے مل کے ہی کام کیا تھا سب نے کہ ہر مہینے کوئی ایک اماؤنٹ الگ کر لیں. ایک ساتھ دینا مشکل ہے تو ہر مہینے آپ کوئی 1 سال کا کم از کم یہ کر لیں کہ یار یہ فلڈ افیکٹیز کے لیے 1 سال تک ہم ایک اماؤنٹ باندھ لیں، جو بھی جس کی جتنی توفیق ہے، اور وہ دیتے رہیں کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. بالکل ایسے آپ دیکھیں نا، جس جو مویشیوں پر انحصار کر رہے تھے اور سب بتایا جا رہا ہے کہ 50 لاکھ کے قریب مویشی ہیں جو بہ گئے ہیں. بالکل فوٹیج ہے باقاعدہ زیادہ. ہاں، جن کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں یا جن کا روزگار کا کوئی سلسلہ ہی نہیں رہا، تو کم سے کم ان فیملیز کو سپورٹ کرنا یا ان کو روزگار پر واپس لے کر آنا، یہ سالوں کا پروسیس ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. جی ہم شعیب انکل کی طرف آئیں گے کیونکہ کچھ انٹرنیشنل سے ان کے پاس پلیجز بھی ہیں. پلس پروگرام کیا ہے آپ کا آگے کا، پاس میں کیسے چلتے رہے ہیں، پلیز تھوڑا اس پر روشنی ڈالے گا. اچھا، سلسلہ یہ ہے کہ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن الحمدللہ 20-21 سال سے کام کر رہی ہے، اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ مرحوم حاجی صاحب عبدالرزاق یعقوب، جس کو ہم ARY کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ پودا ان کا لگایا ہوا ہے. آج وہ جہاں بھی ہوں گے، میرا ایمان ہے کہ ان کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہوگا جتنا لوگوں کو مل رہا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، ہماری دنیا میں تقریباً 8 چیپٹرز ہیں، اور یہ جو ڈفرینٹ چیپٹرز سے آپ کو پلیجز آ رہے ہیں، جیسے فار ایسٹ چیپٹر ہے ہمارا، رائٹ فرام کولمبو ٹو لے کے پورا آسٹریلیشیا کنٹریز تک، جاپان تک وہ جاتا ہے. پاکستان اٹ سیلف ایک چیپٹر ہے، انڈیا میں نارتھن، اس طرح ہمارے 8 چیپٹرز ہیں، اور ڈفرینٹ چیپٹر کے ڈفرینٹ پلیجز آ رہے ہیں. اب کچھ چیپٹرز سے ڈائریکٹ بھی آ رہے ہیں اور کچھ میرے پاس ریٹن کمٹمنٹ بھی ہے.
मैं कुछ बोलते जा रहा हूँ, शायद कहीं कहीं रिपीटिशन है, वो फिर उसको हम करेक्ट कर लेंगे। हमारे एक बड़े अच्छे साथी हैं बोट्सवाना से, गुलाम हुसैन अब्दुल्ला, उन्होंने $5,000 की कमिटमेंट की है। यूसुफ कामदार हैं, हम उनको इंटरनेशनल सिटीजन भी कहते हैं, वो लंदन में भी होते हैं, वो डरबन में भी रहते हैं और यूएई में भी होते हैं। इनकी तरफ से $5,000 हैं। ताबानी ब्रदर्स की तरफ से 10,000 दिरहम है, जो कि इन्होंने अभी हारून साहब ने शायद इसको कवर किया है। हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, शायद अभी हम लाइन पे भी उनको लेंगे, फैजुल अयूब हैं। जिस तरह HM शहजाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे अफ्रीका चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से तकरीबन $2,500 उनकी तरफ से कमिटमेंट है। मूसा करीम है, उनकी तरफ से 25,000 रैंड यानी साउथ अफ्रीकन रैंड हैं, उनकी कमिटमेंट है। इसी तरह वन मुस्लिम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक इंडियन हमारे हैं, उनकी तरफ से। हमारे बड़े अच्छे साथी हैं अमीन चैपल साहब, हम कोशिश करेंगे उनको भी अभी लाइन पे लें। लास्ट टाइम भी उन्होंने 10 लाख रुपए का वादा किया है। अमीन चैपल पे पॉज करूंगा, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप सुन लीजिए, हम जरा उतनी देर लोगों को सिर्फ ये याद दहानी करवा दें कि 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो और ये मौजूदा सानहा हो, बहसियत मजमूई वर्ल्ड मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन ने जो रोल प्ले किया, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट ने जो किरदार अदा किया, एहसास ट्रस्ट ने जो किरदार अदा किया, 2005 में तफसीलात बताई शहजाद साहब ने भी और शुएब साहब ने भी। 2010 में मैंने खुद कवर किया, ज़ाती तौर पर जाकर देखा कि किस तरह से उस वक्त भी ऑटोमेटेड जो रोटियों के प्लांट्स थे वो वहाँ पे थर में लगाए गए थे जहाँ सैलाब आया था और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। सो आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बस दिल खोल कर मदद कीजिए। आप यकीन जानिए कि आपका एक एक पैसा, आपकी एक एक पाई बिल्कुल सही जगह पर और हकदार तरीन लोगों पर खर्च की जाएगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आप खुद अल्ताफ़ साहब तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। जिस तरह अल्ताफ़ भाई ने ये कहा कि आप सोचिए कि किसी आसान जगह नहीं जा रहे, वहाँ जा रहे हैं जहाँ हर जाने पानी खड़ा है, वहाँ जा रहे हैं जहाँ रास्ते टूटे हुए हैं, वहाँ जा रहे हैं जहाँ पुल मौजूद नहीं है, वहाँ जा रहे हैं जहाँ कोई शेल्टर नहीं है, वहाँ जा रहे हैं जहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं है, खाने का पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पर जाना बहुत हिम्मत मांगता है, उसके लिए बड़ी बड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके लिए बड़े जज्बे की ज़रूरत है। और हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपको सलाम पेश करते हैं शहजाद भाई कि आप खुद उस कारवां को लीड करते हुए कल पहले काफिले को लेकर बलूचिस्तान जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, प्लेजेस कंटिन्यू करें। जी हाँ, माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके अलावा जो अमीन चैपल का मैंने आपको जिक्र किया, एक हमारे डॉक्टर शिराज सलमान है, वो नॉर्थ अमेरिका के हमारे हैं, जो हमारे जो वर्ल्ड मेमोरियल चैरिटेबल फाउंडेशन है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ और ये मेरे साथ डिप्टी सेक्रेटरी। इनकी तरफ से $5,000 हैं। आपको अभी अशरफ सत्तार की तरफ से भी वो मिल गया। सत्तार डाडा वन ऑफ आवर फाउंडर मेंबर हैं, उनकी तरफ से $10,000 का कमिटमेंट है। ये भी बोट्सवाना में होते हैं। और एक अननोन डोनर हैं, वो 2.5 मिलियन रैंड है। और ये सब मिलाकर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये $150,000 US बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। $1.5 लाख हैं ये। 7 करोड़ के करीब। ये इसमें कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, इसमें 5 करोड़ पार कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। इसमें कुछ डुप्लीकेशंस हैं, वो थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे। रफली 7 करोड़ पाकिस्तानी कल एक चेक दिया है और शोएब भाई ने भी खुद कल एक चेक दिया है। और वो अभी लिखा नहीं, मतलब अभी वो कहते हैं ना, फूल नहीं फूल की पंखड़ी सही। अभी वो यही कह रहे थे, ये कह रहे, मुझे बहुत अच्छी बात लगी शोएब साहब की कि ये वक्ती तौर पर तो जज्बा सब में इस वक्त जागा हुआ है, पानी भी पहुंच जाएगा, खाना पहुंच जाएगा, टेंट्स पहुंचा दिए जाएंगे। फिर जब सांस फूलती है तब फूलती है जब बहाली का काम शुरू होता है, जब आपको घर बनाकर देने हैं, जब आपको रोजगार फराहम करना है, और तब के लिए आपको अपनी एनर्जीज को बचा के रखना है। ये हमारा तजुर्बा है, साहब का एक्सपीरियंस इकरार ये हमारा तजुर्बा है 2005 के ज़लज़ले का, कि शुरू में एक पाकिस्तानी कौम बड़े जज्बे से निकल गई, पूरे दुनिया की चीज़ें, यानी हमारा साउथ अफ्रीका चैप्टर से हमने टेंट इंपोर्ट कर दिया, टेंट नहीं मिलते थे। हमारे एक साथी हैं यूसुफ भाई जापान वाला, उन्होंने बाकायदा सॉक्स और जुराबे और उस टाइप का जापान से कंटेनर भेजा था हमारे थ्रू, जो हमने नॉर्थ में। मैं इसी की फुटेजेस चल रही हैं, मैं जो बात कर रहा था 2005, 10, 11 का जो भी हमारे यहाँ हादसात हुए थे उस वक्त। मैं कॉलर ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक कॉलर है। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल नाफे बात कर रहा हूं, इकरार भाई से। जी, अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे?
सर मैं 50,000 देना चाह रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आबिद जार्मन फोटो होम से सर, कराची से। कराची से बात कर रहे हैं आप भाई, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। क्या कहने, जिंदाबाद माशाल्लाह, सलामत रहिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह आपने कहा कि शुरू में तो बड़ा जज्बा होता है, एक स्टेज आता है कि इसके बाद हमें रिहेबिलिटेशन पे जाना पड़ता है, और यही हमने और अडॉप्ट तब किया। तक वो जज्बे लोग अपने जी हाँ। मामूल के कामों में लग जी हाँ। चुके होते हैं। भाई थोड़ा सा अल्ताफ भाई के पास कुछ मैसेज आए प्लीज। हाँ, मैंने कहा आपके इंतजार नहीं कीजिए, सारी तो मेरा बीच में बोलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप पहले भी please- मैंने बात शुरू की तो फिर ब्रेक पे चले गए थे। नहीं आप अच्छा, कंटिन्यू इस करें। दफ़ा क्या है कि मैसेज के साथ फ़ोन आ रहे हैं जो मैं ले नहीं सक रहा, लेकिन अभी जो एक तो एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। और एक छापरा फैमिली है हमारी बड़ी मशहूर मेमनों की, उनकी डॉक्टर मरियम है जो सऊदीया में होती है, उन्होंने 10,80,000 का है। और अभी मैं क्योंकि सारा देख नहीं पा रहा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो 1 करोड़ रुपए तकरीबन हो क्या जाएंगे। कहने, इंशाल्लाह, क्या कहने। क्योंकि इस वक्त मुश्किल हो रहा है प्रोग्राम के बीच में अल्लाह सलामत इंटरशिप रखे। करना, बात करना, जाहिर है, लेकिन एक आइडिया मुझे हो रही है कि ये 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इकरार भाई, हम 8 करोड़ का नंबर क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो मैं शिदात भाई की तरफ आता हूँ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। कल सुबह में तो आपका ट्रक जा रहा है, देखिए उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल सुबह हम जा रहे हैं, और इकरार भाई ये कल जो हम सामान लेके जा रहे हैं, अल्ताफ भाई और मेरी क़यादत में शोएब भाई से भी रिक्वेस्ट की भी चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये तकरीबन कोई 1 करोड़ मालियत का हम सामान कल लेके जा रहे हैं। हम मैं फौरन आपको आने 1 के करोड़ बाद- मालियत पे रुकूंगा। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं ज़ोहा फातिमा बात कर रही हूँ लिया से, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड जी, क्या फरमाना चाहेंगे आप? एक्चुअली मेरे पास जितनी मेरी पॉकेट मनी है ऑलरेडी मैं डोनेट कर चुकी हूँ। अपने कॉलेज में भी मैं कह चुकी हूँ कि हम सब अपने स्टूडेंट्स से फेलो से कहा कि हम सब इकट्ठे करके डोनेट करते हैं, सो मैं वहाँ पे भी ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कल इमरान खान साहब की वो था डोनेशन का, तो उसने भी किया है, तो आज मैं यहाँ पे भी करना चाहती हूँ 3,000 रुपीज़। बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बात है, शुक्रिया। क्या नाम बात जरा है? दोबारा बताइएगा प्लीज अपना। ज़ोहा फातिमा। खुश रहे, अल्लाह ताला बहुत सलामत रखे आपको। ये देख पा रहा हूँ जी जी जी। 5 लाख में मेरे बेटे ने मुझे अभी कहा है, डॉक्टर अहमद ने, कि वो कर दें 5 लाख। मैं आप फिर रुकें क्योंकि एक और कॉल है मैं हमारे तो पास। बोलता प्यारी रहूंगा, बात है, अगर मुझे इस कोई जज्बे को- मुझे मैसेज आएगा तो मुझे तो मजबूरी है। आप जी, जरूर जी, जी, बताइए जी। प्लीज, नॉर्थ मुझे तो अमेरिका मजबूरी से- है सलाम करना, नॉर्थ- बहुत बहुत जरूरी है। जिस बच्ची ने हमें कॉल किया कि 3,000 रुपए अपनी लिया पॉकेट से। मनी से उन्होंने कहा कि मैं जितना कर सकती थी ऑलरेडी अपने कॉलेज में कर चुकी, कल खान साहब की टेलीथॉन में कर किया, चुकी। लेकिन आज फिर उन्होंने कहा कि मैं रह नहीं सकी और 3,000 रुपए मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये 3,000 मुझे लगता है जज्बा किसी है। भी 3 करोड़ से ज्यादा है। Exactly. जिस तरह से उन्होंने डोनेट किया, मेरा ख्याल है मैं तालियां बजा के इस बच्ची को दाद देना चाहूंगा। अल्लाह ताला एरिया देखें आप, लैया से सलामत कॉल आ रहिए। रही है। बहुत खुश रहिए मेरी बहन उन्होंने जो एक्चुअली हमारे मुल्क को जी जी जी, बचाया मेरे हो। हमारे साथ बशीर अकूली साहब हैं, नॉर्थ अमेरिका चैप्टर के हमारे प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर अंकल। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बशीर साहब? आप यहाँ पे सारे लोग कह रहे हैं कि एक बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है नॉर्थ अमेरिका चैप्टर से। जी इंशाल्लाह कोशिश हो रही है, और इंशाल्लाह अभी तक जो है हमारी तरफ से जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ से 50,000 का जो है 55,000 के करीब जो है हमारे कलेक्शन हो चुके हैं। $55,000 राइट? प्लेस आ चुके हैं $55,000। इसमें मेमन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अमेरिका कैलिफोर्निया है, उससे 25,000 है। मेमन एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका जो है अपने न्यूयॉर्क से 15,000 है। डॉक्टर शिराज के 5 हैं, मेरी फैमिली की तरफ से 5 हैं, और 5 जो हैं वो दूसरे मिसलेनियस हैं। हमारा गोल जो है, टारगेट जो है, वी आर ट्राइंग टू गेट $100,000। इंशाल्लाह you get that, you get that, इंशाल्लाह, definitely। लोगों का जो इस वक्त जज्बा है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, जो पाकिस्तान से प्यार है, हमें यकीन है कि कोई भी टारगेट आप सेट कर लीजिए, आप यकीन जानिए इंशाल्लाह वो उसको exceed टारगेट करेंगे। अचीव होगा। सो 55,000 US जी, आप continue करें आप। हाँ भाई, मैं ये तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद आप है 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ से तुम ऊपर हमेशा बैठते हैं तो हो ही जाते हैं, और इंशाल्लाह हो जाएंगे। असल में मैं थोड़ा, हम जिस लोगों को ये बात भी पहुंचानी है ना कि हमारा प्लान क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम करेंगे क्या। तो जैसे हाँ, जैसे हमने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, निदा भी बीच में कहा तो मैं रुक गया फिर। तो अब ये इंतज़ाम तो हमारे सारे हो गए हैं, और इंशाल्लाह नेवी वालों से बात होगी शहजाद भाई की, शाम निकलेंगे और पहला पड़ाव हमारा हब होगा, उसके बाद हम सीधा बेला जाएंगे और वहाँ डीसी से वगैरह से इंतजाम के लिए कि सही सामान सही लोगों तक पहुँचे।
और इसके बाद सैटरडे का हमने प्रोग्राम बनाया इंशाल्लाह मोरो और नौशर फिरोज, और उसके बाद हमारा इरादा है कि लाड़काना क्रिकेट, क्या कह रहे हैं, दादू क्रिकेट, महर से अभी मेहर में भी महर का तो वो आज है, मुझे एक वहाँ के डॉक्टर साहब का फ़ोन आया है यार, वो रो रहे थे डॉक्टर मोहम्मद खान मेन रोड पे भी पानी आ गया। आई स्पेशलिस्ट हैं। अल्ताफ भाई हम आपकी बात को ब्रेक के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से फंड्स आना स्टार्ट हो गए और नॉर्थ अमेरिका भी जंप इन हो गया। 10 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम वापस आएंगे और अल्ताफ अयूब जहांगीर साहब से दोबारा। आई होप आपका फोन बजता रहेगा। मुझे बता रहे हैं ना कि जो फंड्स आ रहे हैं या जो लोग अतिया कर रहे हैं उसका इस्तेमाल, उसकी शफाफियत को यकीनी कैसे बनाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पर जरा मजीद इंशाल्लाह बात करते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। हमने कितने किए? 500 करोड़। आप थे ना हमारे साथ लास्ट रमजान में। ठीक है, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस खुसूसी टेलीथॉन में। ख़वातीन और हज़रात, ये नशियात इस मकसद के तहत कि हम मदद कर सकें उन लोगों की जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ 30 लाख अफराद ऐसे हैं। ये नंबर वो नंबर है कि जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक की आबादियों से भी ज़्यादा है। 3.5 करोड़ के करीब अफराद मुतासर हैं। 50 लाख के करीब मवेशी बह गए पानी में, हज़ारों अमवात हुई हैं, 50 लाख के करीब घर मुतासर हुए। सो इस वक्त वो आफत है, एक ऐसी क़यामत सुग़रा का सामना है पाकिस्तान को कि जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। और इसीलिए हम वर्ल्ड मेमोर ऑर्गेनाइजेशन, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट और एहसास वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि आप जितना भी कर सकते हैं, आपकी जितनी भी इस्तेदाद और इस्तेताअत है, प्लीज़ आगे बढ़िए। पाकिस्तान के इन भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आपकी मदद की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मेमोर ऑर्गेनाइजेशन के ख़ास तौर पर ट्रस्टीज़ का बिलखुसूस शुक्रिया। यहाँ तक कि हमें एक तालिबा ने 3000 रुपये भी प्लेज किए कॉल करके, और उन्होंने बताया कि अपनी पॉकेट मनी से कर रही हैं और हमें 3 करोड़ रुपए तक भी अल्हम्दुलिल्लाह प्लेज हुए। सो अब हम 10 करोड़ रुपए की रकम के आसपास इस वक्त खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस रकम से न सिर्फ ये कि लोगों को फौरी तौर पर खुराक की फराहमी का इंतज़ाम होगा, अद्वियात की फराहमी का इंतज़ाम होगा, शेल्टर फराहम किया जाएगा, खैमे फराहम किए जाएंगे, साथ ही साथ बहाली का काम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ किया जाएगा। और इस इमदाद के आने से पहले ही वर्ल्ड मेमोर ऑर्गेनाइजेशन अपने काम का आगाज़ कर चुकी है। कल सुबह 7 बजे इंशाअल्लाह पहला काफिला, पहला काररवां इमदादी सामान और खेप लेकर बलूचिस्तान के लिए रवाना होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। सो आप सबसे अपील है, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत तवील जिद्दोजहद है। अभी ज़ाहिर फ़ौरी तौर पर हमें खुराक फराहम करनी है, अद्वियात फराहम करनी है, और फिर बहाली के साथ साथ रोज़गार, जब तक ये लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हमें इनका साथ नहीं छोड़ना। ये चंद दिनों का, चंद हफ्तों का या चंद महीनों का नहीं बल्कि कुछ सालों का प्रोसेस है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने हमेशा सानहात पे साबित किया कि हम एक अजीम और शानदार कौम है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सानहे में भी हम एक अजीम और शानदार कौम बनकर उभर रहे हैं। अपने मेहमानों का कॉलर है हमारे साथ, कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सर फारूक अहमद अर्ज कर रहा हूँ रहीमियर खान से। फारूक असलम साहब जी, क्या फरमाना चाहेंगे? फारूक अहमद सर रहीमियर खान से अर्ज कर रहा हूँ। जी फारूक साहब। मैं सर एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। जी जी। और मैं 2000 रुपए आपके इस फंड में देना चाह रहा था। सर या क्या फारूक बात भाई है। जिंदाबाद, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एंड आई होप कि कंट्रोल रूम अगर आप नंबर प्लीज इनका नोट करें कि मैं रहीम यार खान जाऊं तो इनको मैं मिल के सलाम पेश करूं। जिस प्यार से और जिस मोहब्बत से इन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने बताया कि भाई रिक्शा ड्राइवर है, 2000 रुपये अतिया कर सकते हैं। सलाम है इस कौम को, सलाम है फारूक साहब आपको, हमारी उस बहन को कि जिसने अपनी पॉकेट मनी से हमें 3000 रुपये अतिया किए। मैं फिर कहूँगा ये 2000 रुपये, ये 3000 रुपये $2 लाख से, $3 लाख से ज़्यादा वक़्त रखते हैं, ज़्यादा अहम है और हमारे दिल के ज़्यादा करीब। अल्लाह ताला आपको। एक और कॉलर हैं भैया। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। फैजल अयूब साहब हमारे साथ हैं, बिलीव साउथ अफ्रीका से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं फैजल अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख फैजल अयूब शुक्र है। फैजल अयूब साहब हमारे साउथ अफ्रीका चैप्टर के जो है वो प्रेसिडेंट हैं, और
इस वक्त वो उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। जी फैजुल अय्यूब साहब। वो जिस तरह शुएब भाई mentioned जी जी the contribution from the South African chapter. जी जी Alhamdulillah, I can advise you the amount is now gone to $300,000 US. वाह माशाल्लाह। थैंक यू। साउथ अफ्रीका जिंदाबाद। So we still collecting more. We sending out the notices to all the other Memon communities, the Memon organizations. ओके And inshallah, we hope to get another $100,000. इंशाल्लाह क्या We बात hope है, that this will. जी क्या कहने फैजल अय्यूब साहब जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया आपका भी और आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों का जो इस चैप्टर का हिस्सा है। तो ये हमने इंक्लूड नहीं किया था उस 10 करोड़ में, राइट? इसमें से 150,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। ये ऑन टॉप ऑफ दैट, 150,000 लेकिन उसमें कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जी हाँ। $1 लाख और आ जाएंगे। Fazul, thank you very much for the support. Fazul, how about the North Africa chapter? I mean, are you in touch with people in Malawi and Tanzania and other part of the South Africa, North America, North Africa chapter? I've sent them all the notices. So inshallah, like I'm saying, definitely, besides the 300, we'll get much more. Inshallah. इंशाल्लाह क्या इंशाल्लाह। बात है जी। तो तकरीबन हम 13 करोड़ रुपए पे इस So वक्त keep in mind, ऑलमोस्ट एक्सीड कर गए। in Africa we are having two chapters. North The cities, the countries which is north of equator, Okay. is not North Africa chapter, and the countries which is south of equator is a South Africa Africa. chapter. तो हमारा ये पूरा एक हायरकी है Right. वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का कि 8 पूरी chapters दुनिया को हमने 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो ये साउथ अफ्रीका के चैप्टर के रीजनल प्रेसिडेंट है जो हमारे साथ। क्या बात है, जिंदाबाद। क्या कहने, फहद क्या भाई का कहने। introduction हमारे जनाब साथ दो बड़ी हमारे साथ celebrities हैं। दो बड़ी अहम शख्सियात एंड वी आर सो ऑनर्ड कि इस कीमती तरीन लम्हे में हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान सिद्दीकी साहब किसी तरह का मुहताज नहीं, हमारे बड़े भाई, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ऐसे हर अच्छे काम में, हर अच्छे कॉज में हमेशा पेश होते हैं। फ़हद मुस्तफ़ा भाई, मैं बड़ा मद्दा हूँ फ़हद भाई का हर हवाले से वैसे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पसे पर्दा रहते हुए फ़हद भाई कर रहे होते हैं इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। वो खुद इट्सेल्फ बड़ी शानदार है। फ़हद भाई थैंक यू सो मच इस टेलीथॉन का हिस्सा बनने। आप जज्बात देख रहे हैं लोगों के। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इस वक्त इतना ओवरवेल्म्ड हूँ, स्पेशली हमारे जितनी भी मेमन कम्युनिटी है। मेरा बहुत अरसे से ये ईमान रहा है कि हमें एटलीस्ट कराची और सिंध तो मेमनों के हवाले कर देना चाहिए। सही। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो शायद इतने बड़े डिज़ास्टर नहीं होते परफॉर्म कर पाते। और आज भी देयर आर वेरी फ्यू प्लेटफॉर्म्स जो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली दे आर वेरी इफेक्टिव इन अ वे बिकॉज इट्स अ डिज़ास्टर सिचुएशन। तो आप हर किसी को भी अगर आप डोनेट करें, एवरीबडी इज़ कलेक्टिंग डोनेशंस, यू नो, ऑल्दो रसाई भी नहीं है लोगों के पास, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो सारी चीज़ें लेके पहुँचेंगे कैसे। सो आपको एटलीस्ट हमारी आर्म फोर्सेस या हमारी गवर्नमेंट या फिर इस तरह के अथेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हों जिनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो कि वाकई लोगों तक पहुंचा सकें वो सारी चीज़ें, बिकॉज कोई अपने 2000 कोई 3000, यू नो, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट एवरीबडी इज़ मेकिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस प्लेटफॉर्म का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सारे मेमन दुनिया भर से तो डेफिनेटली आगे आ ही रहे हैं। मैं सिंधी हूँ पर्सनली, सिंध जा काफ़ी माण्हू जेके आहिनि सॼी दुनिया में मौजूदु आहिनि, उन्हनि सभिनि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त हिन प्लेटफॉर्म ते तव्हां जेतिरो बि डोनेट करे सघो, बिकॉज़ हे सिंध वेंदो, बलूचिस्तान वेंदो, जेतिरो बि पाकिस्तान इफेक्टीज़ आहिनि उन्हनि सभिनि में वेंदो। त इंटरनेशनली जेके माण्हू ॾिसी रहिया आहिनि उहे हिन वक़्तु डेफिनेटली हिते असांखे डोनेट कंदा त इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल। तो ये सिंध में सिंधी के हवाले से पैगाम चला गया। मैं पंजाबी में अर्ज कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। जितने भी लोग पंजाब च इस ट्रांसमिशन में देख रहे हैं, मेरे लिए बड़ी दस्त बस्ता दरखास्त है कि अगे वधो। पूरे पाकिस्तान में थोड़ी मदद की जरूरत है। हर सूबा इस वक्त मुतासर है। बलोचिस्तान की गल कर लो, तुसी साउथ पंजाब की गल करो, तुसी सूबा सिंध की गल करो, तुसी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गल करो, थोड़ी मदद की जरूरत है। अगे वधो, दिल खोल के वध चढ़ के कोशिश करो कि असी अपने इन्होंने भैन भरावां की मदद कर सकिए। सो कोशिश यही है कि हम सब, पूरा पाकिस्तान चूँकि मुतासर है, सो पूरे पाकिस्तान को एक साथ होकर एक दूसरे की मदद करते हुए हमारे साथ इकरार भाई एक और कॉलर है फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई आई गेस। प्लीज पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मेमने के
पूरी दुनिया में वसन वारे बधे मेमणे से रिक्वेस्ट आई जो ये पाकिस्तान मथे जो आफ़त अचेली आई अल्लाह ताला बधे के महफूज़ रखे आमीन। आउं सम्झां तो मुंहिंजी लाइफ में आउं कॾहिं एतिरो वॾो सानियो न आहियो ज़िंदगी में पाकिस्तान में पूरी मेमण कौम के आउं रिक्वेस्ट करनो सी कहीं दुख की घड़ी में पाके पाकिस्तानी अवाम जो साथ ॾेवा वई पूरो बलूचिस्तान तबाह थी वियो आहे पूरो सिंध तबाह थी वियो आहे पूरो पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे अकड़ो अकड़ो मेमण बचो अकड़ो अकड़ो मेमण भाउ पंहिंजा वडील पंहिंजा सेठिया मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे न ही को कि पूरी दुनिया में वञी रहियो आहे ऐं पूरी दुनिया में वसण वारे मेमणे खे न ख़ुसूसन पाकिस्तानी खे मुसलमान खे ऐं अपील कंदो कंहिं दुख जी घड़ी में पाकिस्तान जो साथ ॾियो पाकिस्तानी अवाम जो साथ ॾियो जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जिस जज्बे से आपने अपील की, एक ज़बान जो हम सबकी ज़बान है उर्दू, उसमें कुछ आप बिल्कुल जनाब, प्लीज़, बल्कि मैं थोड़ा मंजूम अंदाज में भी कुछ आप पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी जो हाज़रीन महफिल इधर बैठे हुए हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा काम है और चाहे फ़हद हो चाहे एजाज़ हो आप हो सब अपना अपने ज़रिए से अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कैसी भी हालात हों कुछ भी हो, मगर जब चैरिटी की बात आती है ना हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। मेरी दुआ ये है कि जिस तरीके से हम चैरिटी के लिए इकट्ठा होते हैं, एक साथ होते हैं, सारी कौमें एक साथ हो जाती हैं, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी इसी तरीके से हम ऐसी साथ ही रहें। मेरा अंदाज़ बयां कुछ दूसरे अंदाज से होगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। मुझको दरिया दिली की दोबारा करो। मुझको दरिया की दरिया दिली ले गई, जिंदगी की बका जिंदगी ले गई, लहर दर लहर मेरा पता पूछते, मेरी लोई दिया झोपड़ी ले गई। अब लोई के हवाले से अगर मैं जिक्र करूं तो ये आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक गरीब आदमी के पास ये तीन चीज़ें तो पूरी होती हैं, लोई बुसीदा चादर यानी लोई हो गई, दिया हो गया और उसकी झोपड़ी ले गई। मैं मदद के लिए चीखता रह गया, मेरी फरियाद बेहिसी ले गई। मैं अनोखे तरीके से रुखसत हुआ, मेरी मैयत को बेचारगी ले गई। ऐ खुदा ना खुदा तू मेरा है मगर डूबते वक्त तेरी कमी ले गई। दिल के दरिया में बहते हुए चांद को चल लहरों की आवारगी ले गई। हम चरागों की लौ की है औकात क्या, जब हवा को जरूरत पड़ी ले गई। खेल चारागरी का मुकम्मल हुआ, जिंदगी पर कज़ा बरतरी ले गई। जिंदगी पर कज़ा बरतरी अगर आप देखें तो ये हालात हैं इस वक्त पूरे मुल्क के चारों सूबों के, जिस जगह आप नज़र उठाए तो यही हालात हैं। मगर इसी हवाले से मैं कुछ और भी जिक्र करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनको छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नो मैंस लैंड होता है दो मुल्कों के बीच में, तो वो इलाका छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से जब दरिया जहाँ बह रहे होते हैं वो रिवर बेड होता है, इसी तरीके से जहाँ रेलवे लाइन होती है उसके पास का जो इलाका होता है उनको छोड़ दिया जाता है, और इन्हीं दिनों के लिए इन्हीं वजहों के लिए छोड़ा जाता है। अगर हमारी इंतज़ामिया इस चीज़ को देख ले, समझ ले कि जनाब ये रिवर बेड के पास कोई भी मकानात, कोई भी जिसको कच्चा का एरिया कहा जाता है, उस पर कुछ बनना नहीं चाहिए, वो इलाके खाली रहने चाहिए, तो शायद ऐसी तबाही ना हो। बिल्कुल सही जी। बदकिस्मती ज़ाहिर है मिसमैनेजमेंट है इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं, लेकिन ज़ाहिर है अब ये सानहा वक़ूफ़-पज़ीर हो चुका है। अब हमें देखना है कि हम इसमें से किस तरह से निकल सकते हैं। और जिस तरह बहुत राइटली पॉइंट आउट किया
کہ انیشیلی خوراک کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ ہر طرف پانی ہے عدنان بھائی, لیکن وہ پانی پیا نہیں جا سکتا, پینے کے قابل نہیں ہے, ورنہ وہ غیر بیماریاں اس سے جنم لیں گی, اور بیماریاں جنم لینا شروع ہو چکی ہیں. اسپتال بھرنا شروع ہو گئے ہیں. حیدرآباد سے آج صبح کی یہ خبر ہے کہ وہاں کی جو ایمرجنسی ہے ڈائریا کی مریضوں کی وجہ سے وہ بالکل ان میں جگہ باقی نہیں رہی. تو وہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی پانی نہیں پیا جا سکتا. صاف پانی پہنچانا سب سے بڑا چیلنج ہے. مویشیوں کو پانی پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مویشیوں کا چارہ پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ سوچیں کہ ان کی جو زندگیاں مویشیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, تو صرف ان کی خوراک نہیں, ان کے مویشیوں کی خوراک, شیلٹر, کم سے کم ایک تمبو, کوئی ایک ٹینٹ ایسا ہو کہ جس کے نیچے وہ زندگی گزار سکے. اپنی حاجات کی قضا کے لیے ان کو جو جگہ ہے وہ میسر نہیں ہے. KPK سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں جو ہماری بہنیں ہیں جو پردے کا بالخصوص بہت خیال رکھتی ہیں, اب ان کے لیے قضائے حاجت کے لیے جانا کسی جگہ پر وہ کتنا بڑا چیلنج ہے. سو چھوٹی چھوٹی سی پرابلمز دیکھیں, اپنی فیملی کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے بڑے پرابلمز یا مشکلات سے. اس میں دو باتیں, یہ آپ نے جو میں آپ دونوں کو پھر روکوں گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ زبیدہ بات کر رہی ہیں. زبیدہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی میں UK سے بات کر رہی ہوں, ہالی فیکس سے. اقرار الحسن بھائی, آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو اس جذبے پہ بہت بہت میں سلام پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھنے سے دل دہل جاتا ہے, لیکن جن پہ گزری ہے اللہ تعالیٰ ان پر صبر کا اجر عطا فرمائے. اور آپ لوگ اور ہم لوگ جو مالی امداد کرتے ہیں یا جو آپ لوگ کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے چنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان جس کی شان لا الہ الا اللہ ہے, اور جس کا نشان ہی چاند اور ستارہ ہے, اور جس کو ابھارنے کے لیے عمران خان کو بھی اللہ نہیں اتارا ہے, اللہ سب کو کامیابیاں, کامرانیاں, ترقیاں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. اماؤنٹ تو بہت تھوڑی سی ہے. نہیں کوئی اماؤنٹ تھوڑی نہیں, بس آپ اناؤنس کر دیجیے. جو بیٹھتے ہیں نا, ہم جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دینے کی توفیق کرے, ہم دے رہے ہیں. جو جی 1000 پاؤنڈ کی اناؤنسمنٹ کی ہے انہوں نے, 1000 پاؤنڈ کی اناؤنسمنٹ کی ہے زبیدہ صاحبہ نے. اچھا اقرار بھائی, میں ایک مرتبہ پھر سے اناؤنسمنٹ کر دوں کہ چھوٹی بڑی اماؤنٹ کوئی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آج کی جو ٹرو ایگزامپل ہے, ایک وہ اسٹوڈنٹ آئی تھی ہمارے پاس 3000 روپے, ہمارے بھائی رکشہ ڈرائیور آئے تھے, اور ایک لیا سے اسٹوڈنٹ. آئی تھنک لیڈنگ تو یہ ڈونیشنز ہیں نا آج. کیا بات ہے. تو اس میں ایڈ کروں راشن بیگس کے لیے کہ اگر آپ ایک راشن بیگ کی جو مد ہے وہ ہے 6000 روپے, 6000 روپے کا راشن بیگ ہے ایک فیملی کے لیے. ٹینٹ ہم دے رہے ہیں 9000 روپے, آپ ایک بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ اماؤنٹ سپلٹ بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ریجنل آفیسز کے نمبرز اور ویسے بھی ظاہر جو بھی اماؤنٹس آ رہی ہیں ہم ان کو پول ان کر کے بھی ایگزیکٹلی ایک کالر ہے پلیز تمہارے ساتھ ایک محنت کا شے بتایا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی مسٹر فاروق بول رہے ہیں دبئی سے. جی فاروق صاحب کیسے مزاج ہے, خیریت سے؟ سوری دوسری. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان الحمدللہ. سر first I want to compliment WMO for this noble initiative. Okay. And I want to pledge 500,000 rupees. 500,000 روپیز. اچھا میں تھینک یو فاروق انکل, تھینک یو ویری مچ. فاروق بھائی جو ہیں یہ UAE کے ہمارے بہت بڑے ڈونر ہیں, ان کی منتھلی جو ہیں وہ پے چیکس بھی آتے ہیں WMO پاکستان چیپٹر میں ایک راشن کی مد میں جو کہ فکسڈ ہے. اللہ نظر پر سے بچائے نیڈی فیملیوں کو سالانہ 3 کروڑ روپے. فاروق جی ہاں بالکل. 500 فیملیوں کو, ہر فیملی کو 5000 روپے ان کے توسط سے. اللہ اور ان کے رزق میں برکت دے. آمین آمین. اچھا اقرار بھائی, الطاف بھائی صاحب کچھ فرما رہے تھے وہاں سے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پانی کی ایک بات کی, کپڑوں کی بات کی. پھر آپ کو رکوں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. حضرت خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سر, خیریت؟ الحمدللہ. حضرت خان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں. اقرار بھائی کو میں نے بتانا تھا کہ میں نے ابھی موبائل آن کیا تو اس پہ آپ کا پروگرام چل رہا تھا. اچھا آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں جناب, بہت شکریہ. ادھر یار آئی نہیں اور نیوز نہیں آ رہی. اچھا اللہ خیریت رکھے گا, آ جائے گا انشاءاللہ. اس پہ جو ہے نا ابھی میں نے چیک کیا تو 2000 روپے میں نے کمائے صبح سے لے کے ابھی تک کام کر رہا تھا, مزدوری کی ہے.
क्या बात है, क्या बात तो वो 2000 रुपए मैं डोनेट करना चाहता हूँ। बस मैंने घर में आटा देखा है तो कल का है, मैंने कहा चलो ये आज का जो है ये- हाय हाय क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जियो मेरा भाई, सलामत रहे यार, सलामत रहे, खुश रहे। ये होते हैं क्या बात, क्या मैंने आटा देखा कल का है, खैर है, बाकी जो मैंने कमाया फिर ये ले। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके खानदान के लिए आसानियाँ पैदा करे और जीते रहें, सलामत रहें। क्या कहने आपके, ये है पाकिस्तानी कौम। फोर्थ एग्जाम्पल फॉर टुडे। हम हमेशा कहते हैं ना कि हम भीड़ हैं, हम हुजूम हैं, हम आम हालात में वाकई ऐसे लगते हैं, वो हमारे हुक्मरान हैं। हाँ, अनफॉर्म हमें कर देते हैं कभी कभार ऐसा, लेकिन जब कोई ऐसा सानेहा होता है फिर हम बताते हैं कि हम कैसी कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहना, अल्ताफ भाई अच्छा, मैं ये कह रहा था, कॉल है तो तुम्हें रोक लेना है। मैं ये कह रहा था कि पानी की जैसे आपने बात की कि पानी गंदा है, लोग बीमार हो रहे हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे साफ पानी अवेलेबल है, अब उनका इशू ये है कि बर्तन नहीं है, बर्तन नहीं, पानी है बर्तन नहीं है। तो हम इस दफा जो बलूचिस्तान जा रहे हैं ना, तो हम कूलर लेके जा रहे हैं अपने साथ। ओके जी, तो उन लोगों को कूलर भी इंशाल्लाह देंगे, 1000 कूलर लेके, 1000 कूलर भी लेके जा रहे हैं। दूसरी आपने एक बात की थी कपड़ों की, लोगों की, हमने कल से प्लान करके अनाउंस किया है अपने यहाँ, और मैं आपके तवज्जुह से अनाउंस कर रहा हूँ हमारी पूरी कौम को, ठीक है, इसमें सब शामिल हैं, कि आपके घरों में जो पुराने कपड़े हैं जी, वो आप हमें दें, हम उसको वॉश करा के, इस्त्री करा के उन तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अभी नए कपड़े बना नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है उनको लेना बनाना, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन फौरन हमें अगर पुराने कपड़े भी दे दिए जाएं, या आप समझते हैं कि ये अच्छे कपड़े मुझे वही भी देने चाहिए, बिल्कुल सही है, तो ये बच्चे अच्छे कपड़े ही देने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे कपड़े ही ना हों, बिल्कुल, और ये इसमें शामिल होना चाहें, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने पुराने कपड़े दें, मैं अपने अच्छे कपड़े भी दूं जो मैं पहनता हूँ, ताकि उन तक पहुँचे। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और प्लेजर हमारे पास WMO यूथ विंग पाकिस्तान चैप्टर के हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल्ला और उस्मा यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने अभी 90,000 रुपए का ऐलान किया है कि एक हमारी 9 लाख रुपए, माय बैड में एक जीरो मिस कर गया हूँ मैं, तो 9 लाख रुपए की अनाउंसमेंट की, और सुबह से कंफ्यूजन चल रही है। अब्दुल्ला हमारे पाकिस्तान, अब्दुल्ला जो है हमारे पाकिस्तान चैप्टर के यूथ विंग के प्रेसिडेंट क्या बात है, और उनकी टीम में अब्दुल्ला वैसे भी हमारे लिए एक बड़ी एग्जांपल है, एक और एतबार से भी जी, माशाल्लाह, जैसे छटने के सो एक और एडिशन हो गया हमारे पास 9 लाख रुपए का। क्या कहने, और मैं अभी तक मेरा एक सवाल है, जो राशन जा रहा है, जो जैसे दाल चावल ये सब आटा जा रहा है, हाजत के लिए उधर जगह इस वक्त नहीं है, कपड़े नहीं है, ये खाना बनाएंगे कैसे उधर? इसके लिए हमने ये मैं थोड़ा सा बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला हम कल तो बलूचिस्तान जा रहे हैं, उसके बाद हमारा पड़ाव सीधा सिंध है, और 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें दादू है, कंबर शहजाद है और सजावल है। वहाँ के जो नेवी के कमांडर्स हैं उनसे हमारा प्रोग्राम तय हो गया है। हम यहाँ से एक बहुत बड़ी मिकदार में, क्योंकि वहाँ इस वक्त भी 6 से 8 फुट पानी खड़ा है। आप शिदात अंकल यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, हमें इस वक्त ब्रेक लेना है, क्योंकि बात यहीं से अदनान भाई का जो जवाब है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि इसको कैसे आप लोग वहाँ जाकर यूटिलाइज करेंगे। सो बात यहाँ तक आ गई, एक बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने किया, और कुकिंग फूड की बात भी अदनान भाई इस ब्रेक के बाद करेंगे कि वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास डोनेशंस के अंदर। हमें लेना है एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और शहजाद भाई के रिप्लाई से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।